ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ questions related to concept of force and Newton's laws of motion। स्क्रीन देखो जी, विजिबल है सारे नूं? आवाज वगैरह सुनाई दे रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? शुभकर्मन कह रहा है ठीक है, बिल्कुल ओके है। हाँ जी, एक बार सारे जने रिस्पॉन्स दो। ठीक है, आवाज भी सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है जी। ओके ओके ठीक है। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ P is equal to mv, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜਿਆ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ F is directly proportional to m constant ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ dv by dt। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ F directly proportional to v dm by dt। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਕਟ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ F is equal to ma। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ F is directly proportional to m dv by dt, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ m v minus u upon t। v minus u upon t ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲਸ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ F ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ dp by dt ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇੰਪਲਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇੰਪਲਸ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਉਹ ਸਰਟਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? m ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨ, v minus u, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
देखो बनाया कि मैं लास्ट टाइम भी दस्या सी, दोबारा दस देना है। फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू, एम आ गया कॉमन, दिस इज द फॉर्मूला। अगर बच्चे साडे कोले जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहिए भी एक बॉडी u वेलोसिटी नाल गई जिहदा मास m सीगा, वो किसी सरफेस नाल टकराउण तो बाद ਆਪੋਜ਼ਿਟ डायरेक्शन च आ गई विद वेलोसिटी v, मास कितना है m। तो बच्चे इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, mv + u ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋ 네ਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ डायरेक्शन ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। क्यों देखो तुसी देख भी सकते हो, जो मैं तुहानू कहा है इनिशियल मोमेंटम है कितना है, दैट इज mu, इधर जेड़ा फाइनल मोमेंटम है दैट इज mv। तो चेंज इन मोमेंटम देखो mv है ना, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ए वाली डायरेक्शन की होती है दैट इज -x एक्सिस, ये आ गया माइनस। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चे की हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, देखो माइनस कॉमन आ जाता है। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮਸ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋ, 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? क्लियर है? यस सर। हाँ, रिस्पॉन्स देना गा, ठीक है। फिर ही मतलब जिन्हें जिमें आप क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अ पार्टिकल, देखो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ concepts ਕੀ क्लियर होंगे। A particle is in a straight line motion with uniform velocity, a force is not required, a force is not required। ऑप्शन नंबर ए है टू इंक्रीज the speed, option number B to decrease the speed, option number C है to maintain the same speed, option number D है to change the direction। हाँ जी बोलो जी, म्यूट आपने हटा दो, फिर हमें अपन ज्यादा टाइम लगेगा, बार बार म्यूट हटा करो, म्यूट हटा दो। आंसर दा रिस्पांस देना है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। निहारिका, तन्वी, बच्चे म्यूट हटा दो अपना, आंसर देने ने की लगता है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी टू मेंटेन द सेम स्पीड, बिल्कुल सही है जी। देखो अपन की क्या है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपन कहता भी ਉਹਦੀ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ एक्सेलरेशन नहीं है कि ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ फोर्स नहीं चाहिए टू मेंटेन द सेम स्पीड, क्योंकि वो पहली यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जी, गुड। दूसरा क्वेश्चन है एसेंशियल characteristic of equilibrium is
ऑप्शन नंबर ए मोमेंटम इक्वल्स 0, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, ऑप्शन डी वेलोसिटी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम देखो पहला मैं इक्विलिब्रियम बारे दस देना थोड़ा जिहा भी इक्विलिब्रियम होंदा की है, किसी को पता भी इक्विलिब्रियम की होंदा है? बच्चे म्यूट हटा दो अपना, कोई दिक्कत नहीं हैगी। तनवी निहारिका देखो आप 4 स्टूडेंट ही, आप ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होने वाली इत्थे, ठीक है? बस तुसीं बैठे हो इस जगह ते जिथे मान लो तुहाडे घरों कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना होवे, म्यूट हटा के रखो, ठीक है? इन्ना अपना टाइम बचेगा। किसी को पता भी इक्विलिब्रियम की होंदा है? एनीवन? इक्विलिब्रियम देखो केमिस्ट्री च भी पढ़ते हो तुसीं इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम दे विच आ गई, की मतलब हुंदा सी इक्विलिब्रियम दा? तनवी सर मतलब बैलेंस बने रहे, बैलेंस मतलब बैलेंस है ना? तो मैं दसदा इक्विलिब्रियम का मतलब की है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक्चुअल जो हैगा ही बैलेंस है। मान लो फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है जी, इस बॉडी ते कोई एक पर्सन इस डायरेक्शन च फोर्स ला रहा है F1 फोर्स, ठीक है जी। एक पर्सन इस डायरेक्शन च फोर्स ला रहा है दैट इज F2, एक पर्सन इस डायरेक्शन च फोर्स ला रहा है दैट इज F3। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस ने ते डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ने, बट जी ये बच्चे बॉडी है ना ये मूव नहीं कर रही। दैट मीनस मैं कह सकता भी जी नैट फोर्स है उस बॉडी ते वो 0 है। ਇਹਦਾ मतलब कुल मिला के की है भी जी फोर्स F1 है प्लस फोर्स F2 है प्लस फोर्स F3 है, इन्ना जो वैक्टर सम है वो किसी तरीके नाल 0 हो। दिस इज द मेन कंडीशन टू चेक अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम और नॉट। जदों भी किसी बॉडी ते फोर्सेस चाहे लग रही ने चाहे नहीं लग रही, अगर नहीं लग रही तो देखो नेट फोर्स 0 है। अगर किसी बॉडी ते फोर्सेस लग भी रही ने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन भी लग रही ने बट उन्हां दा नेट इफेक्ट अगर 0 होवे तो उस टाइम ते असी उस बॉडी नू इक्विलिब्रियम दे विच बोलते हैं। जिवें मैं तुहानू एक एग्जांपल होर देवां, मान लो जिवें आ तुहाडे कोल एक टेबल है, ठीक है? इस टेबल ते मान लो एक बुक पई है। हुण आपां हमेशा कहने भी जिहड़ा बुक दा जिहड़ा वेट आ डाउनवर्ड लगदा है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ n। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ weight ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਅੱਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होंदा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होंदा है, ठीक है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होंदा है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ? 0। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, essential characteristics of equilibrium is A is equal to 0. A is equal to 0. A is equal to 0. Very good. B option is right. क्यों? क्योंकि देखो आपा क्या है भी नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए है? 0। ਹੁਣ फोर्स ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? फोर्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो मास ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ नेट फोर्स 0 है ਇਹਦਾ 0 is equal to mass into acceleration। देखो मास ਤਾਂ 0 नहीं है ना, ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है जी, मैं बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट कर रहे हैं। देख लो, a 10 kg mass
is accelerated from rest to 30 meter per second in 2 seconds, what force act on it? कितनी फोर्स लगेगी? ऑप्शन ए 300 न्यूटन, ऑप्शन बी 150 न्यूटन, ऑप्शन सी 75 न्यूटन, ऑप्शन डी 600 न्यूटन। हाँ जी दसो जी। बी ऑप्शन केड़ी ऑप्शन? 150 न्यूटन 150 न्यूटन। न्यूटन। देखो ये सारे देखो 150 न्यूटन आंसर आ रहे हैं। निहारिका बोल रही है 150 न्यूटन। कॉन्फिडेंट हो? Yes, sir. Yes, sir. 150. सारे आ रहा है जी 150। Yes, sir. ओके वेरी गुड, बिल्कुल राइट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? A body of mass 80 gram is moving with a constant velocity of 4 centimeter per second on a horizontal frictionless table. The force on the body in dynes is option A 0, option B 39200, option C 78400, option D that is 8000। हाँ जी बहुत सिंपल है, बस जे थोड़े जे ध्यान नाल देखोगे। एक बॉडी ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਟੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬॉडी ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? जल्दी जल्दी सोचो। सर 0 0। निहारिका कह रही है 0। बाकी शुभकर्मन, तन्वी, महक की कहती है? निहारिका 0 आंसर क्यों लग रहा है? सर फ्रिक्शनलेस टेबल है, अगर फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पैनी उसमें मूव करवाने ਲਈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ दैट मींस ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन ऑब्जेक्ट बच्चे अपने को 10 मिनट रह गए। दोबारा लिंक मैं सेंड करूँ। अच्छा क्लास दोबारा भी ज्वाइन करनी है इस तो बाद। एन ऑब्जेक्ट विद अ मास 5 kg moves
at a constant velocity of 8 meter per second, a constant force then acts for 6 seconds on the object giving it a speed of 4 meter per second in opposite direction. The acceleration produced is option A, that is 1.5 meter per second square, option B, that is -2 meter per second square, option C, that is 0.67 meter per second square, option D, that is -0.5 meter per second square. हाँ जी करो जी करो, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। अपने अपनी कॉपीज से सॉल्व करो। -2 तनवी का आंसर आ रहा है जी -2। अच्छा बाकी दे स्टूडेंट्स करो सॉल्व करो सारे जने। देखो मास तो गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी ने पहला बॉडी मूव कर रही थी, उस तो बाद उसने कांस्टेंट फोर्स लगाती, किन्ने टाइम वास्ते लगाई 6 सेकंड वास्ते लगाई, जिदे नाल जिहड़ी ओदी वेलोसिटी है कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो फॉर एग्जांपल पहला बॉडी इन दिस डायरेक्शन जा रही सी, इस तो बाद ओदी जिहड़ी वेलोसिटी है इस तो ऑपोजिट है। तन्वी फाइनल आंसर? यस सर। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी, बी आंसर बिल्कुल राइट है। देखो मैं दस देना, बड़ा ही सिंपल है। देखो मास गिवन है, मास कितना दैट इज 5 kg। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दैट इज u 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तुसी इत्थे गड़बड़ कर रहे होंगे, फाइनल वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस आगे क्या होगा माइनस साइन। टाइम कितना है, टाइम 6 सेकंड, पर तुसी माइनस साइन लगाया होना, जिन्ना दी गलत आ रहा होगा आंसर। तो एक्सेलरेशन फाइंड करो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन कितना आ गया टाइम 6, दैट इज -12 अपॉन 6, कट के कितना आ गया दैट इज -2। देखो -2 आ गया एक्सेलरेशन, दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, the velocity acquired by mass m, the velocity acquired by mass m in traveling a certain distance d, starting
from rest under the action of a constant force is directly proportional to option A root m, option B m the power 0, option C 1 by root m, option D m। करो जी, 1 मिनट का टाइम है। शुभकर्मन जागदा सुता तो नहीं पिया? ओके करो करो ट्राई करो, सारे का आंसर होना चाहिए है। वेलोसिटी तो दे रखी है, सर्टेन डिस्टेंस d ट्रैवल किया है। अच्छा तो ये भी दसता बॉडी रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ਉਹਦੇ ਤੇ कांस्टेंट फोर्स लग रही है। वो दसना तुसी ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है वो किस दे मतलब वेलोसिटी ਦਾ मास ਨਾਲ ਕੀ रिलेशन होएगा, ये तुसी कैलकुलेट करना है। क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ने जिन्ना तुसी इन्ना टाइम लगा रहे हो। हाँ जी बोलो की आंसर आ रहे हैं? टाइम कंप्लीट हो गया जी, बोलो आंसर की आ रहा है? महक की आंसर आ रहा है? तन्वी सर 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो टाइम ऊपर हो गया। निहारिका, शुभकर्मन, चलो 20 सेकंड्स और देते तो 14 सेकंड रह गए। 10 Sir, 1 upon under root m. 1 अपॉन अंडर रूट m। कौन बोल रही है? महक बोले, महक ने बोले आंसर है। Yes, sir. बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड। देखो बड़ा सिंपल सीगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो u कितना आख्या इन्होंने 0, ਇਹਦਾ मतलब v इज इक्वल टू की हो गया अपने को v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इथों एक्सेलरेशन कितनी आऊगी, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा इन्होंने क्या है, फोर्स लगी है कांस्टेंट, मतलब f की कांस्टेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय 2a। ਤਾਂ ਇਧਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ f into 2 सॉरी ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ s, ਤੇ s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस d है अपॉन की हो गया m which is equal to v स्क्वायर। देखो f कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब v स्क्वायर is inversely proportional to m। ਇਹਦਾ मतलब मैं कह सकता v is inversely proportional to 1 by root m। this is answer, very simple। ठीक है जी, दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाए।